हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी ए प्रोग्रामर में। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं पूरा डिट्टो सिलेबस। व्हाट इज द कंप्लीट सिलेबस, व्हाट इज द ओवरव्यू सिलेबस, वो सारी चीज़ें, और क्या ये प्रीवियस किसी एग्जाम के साथ मैच आउट कर रहा है क्या, वो भी सीखेंगे। और अगर आप टीसीएस एनक्यूटी की प्रिपरेशन कर रहे हो एनक्यूटी, तो ये भी एग्जाम दे सकते हो। अगर आप 20 या 21 बैचेस से हो, बी टेक, एम टेक, एम सी, इन सारे ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हो, 21 और 20 ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और अप्लाई फॉर ड्राइव का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है आपके पास, तो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई है अप्लाई फॉर ड्राइव की, जो आपको एक प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना दी है टीसीएस की, उसमें आपको वो वीडियो मिल जाएगी। उससे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा क्यों ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्या करें तो ऑप्शन हो जाए, ठीक है, वो सारी चीज़ें। चलते हैं स्क्रीन पे, सारी चीज़ें देखते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बात करेंगे, एकदम डिटेल सिलेबस होने वाला है। किसी और वीडियोज़ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पे सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलते हैं स्क्रीन पे, सारी चीज़ देखते हैं। अपना ग्रेजुएशन ईयर जरूर कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत मेहनत से सिलेबस वगैरह खोज के लाए, मेहनत की है, खोजे हैं, पता की हैं, वो सारी चीज़ें। शुरू करने से पहले एक बहुत ही काम की बात बता दूं, दैट इफ यू आर अ स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल who is looking for a great career in software development, then you have to think about the aspects like what's trending in the industry and the kind of questions are being asked in the interviews, what's the thought process behind the architecture of the great applications like Google, Amazon, Ola, Zomato, how to improve the CodeChef ranking, कैसे CodeChef की ranking improve करें, these all things you need to know. Our hosts are working with the top companies like Google, Amazon and many more companies like this. They are the 7-star coders on CodeChef, are industry experts with years of experience. They will walk you through their own industry experience and interact with their lots of guests like HRs and industry leaders of the top companies, where they will ask the questions raised by you. आप लोग जो क्वेश्चन रेज करोगे, वही क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे जो HR है, लीडर्स हैं उन पर्टिकुलर टॉप कंपनीज के। इन लाइव एपिसोड्स यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क टेक HRs about the top interview questions and industry leaders directly about the recruitment process in the startups and MNCs. What is the eligibility criteria basically, how to apply and how they build such great products. Even आप अपना resume या college या personal projects improve करवा सकते हो by getting reviewed by the expert SDs. Not only this, you can also participate in mock interviews and learn the courses on programming languages, cloud computing, blockchain, crypto, tech aspects of the digital marketing, data analytics. There are many things that you can do. So they are some of the top educators who will be teaching you about the college products, about the tech extracurriculars, about the HR talks, world of data analytics, and top interview questions. And you will be learning many things in a very structured way as compared to YouTube. This will be very, very structured. So listening to all these things about the features and all the things you will be getting in this particular course, you might be thinking कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा कोर्स, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा. It is not like that. The charge is only 999 per year, that is 1000 rupees per year, and you will be getting an extra discount of 10% by using my code ANU10, and you can also see the links. All the links are in the description. It will be helpful for you. Do subscribe, do use this subscription to gain a lot of knowledge. So this was it, and let's go to the video. So as you can see, this is the complete overview. पहले है कि हम overview में क्या देखने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, and this is a genuine verified thing, ठीक है। ये मेन TCS के वेबसाइट से ही मैंने निकाल के लाया है। नेक्स्ट थिंग, ये इसके बाद डिटेल सिलेबस के बारे में बताएंगे टॉपिक वाइज कि कौन कौन सा टॉपिक है, वो उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। आपको पूरा टाइम स्टैम्प्स नीचे मिल जाएंगे। इट विल बी इजी फॉर यू टू गो, एक एक प्रोसेस पे जाना, एक एक प्रोसेस पे जा सकते हो, सारी चीज़ें मिल जाएंगी वेबसाइट पे, सारा चीज डिटेल में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी देख सकते हो आगे, पर टाइम नहीं वेस्ट हो। और स्ट्रैटेजी के ऊपर कहाँ से पढ़े, वो सारी चीज़ों के ऊपर भी वीडियो आगे आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके लगना, तभी आपको वीडियोज ऐसे मिलेंगे। सो पहली चीज़, दीज आर द सेक्शंस। ये सेक्शंस हैं बेसिकली। पहला सेक्शन है दैट इज सेक्शन वाइज, मैंने लिख दिया है यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन वाइज कौन कौन से सेक्शंस होने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आने वाले, कितने मिनट्स मिलने वाले, वो सारी चीजें। देखो पहली चीज तो यू विल बी गेटिंग 2 ऑप्शंस टू व्हेन यू विल अप्लाई फॉर ड्राइव पे जाओगे, वो ऑप्शन, वो अगर नहीं आ रहा तो वो वीडियो देख लेना जैसे मैंने बताया। तो अप्लाई फॉर ड्राइव का अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आपको देखो ऑप्शन आ गया है, तो आपको 2 ऑप्शंस आएंगे, दैट इज इन सेंटर और रिमोट और इन सेंटर। तो रिमोट भी दे सकते हो एग्जाम, इन सेंटर जाके दे सकते हो। इन सेंटर इज मोर प्रिफर्ड बाई मी, बिकॉज वहां पे आपको कोई भी अलग से झंझट नहीं करना रहता, जिस दिन एग्जाम है उस दिन जाओ और दे दो, ठीक है, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। नेक्स्ट थिंग,
यहाँ पे देखो दैट इज वर्बल एबिलिटी। पहला सेक्शन हमारा वर्बल एबिलिटी, 24 क्वेश्चंस होने वाले, 30 मिनट आपको मानने वाले हैं। वर्बल एबिलिटी बहुत ही नॉर्मल डिफिकल्टी का होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, नॉर्मल डिफिकल्टी। देन दिस वन दैट इज रीजनिंग एबिलिटी, 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस 50 मिनट्स मिलने वाले हैं। यू हैव टू कंप्लीट दिस रीजनिंग एबिलिटी। नेक्स्ट थिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट इज द एप्टीट्यूड सेक्शन। ये येलो वाला पार्ट जो है ना, दिस येलो पार्ट इज द एप्टीट्यूड सेक्शन बेसिकली। ये आपका क्लियर आउट जब होगा उसके बाद ही अगला सेक्शन, ऐसा नहीं है लाइक कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ है बट ऐसा नहीं है कि आपका अगला एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम टीचर्स एन पे होने वाला है। टीचर्स एन ही इसका टेस्ट प्रोवाइडर है, वही करा रहा है एग्जाम। सो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट 40 मिनट आपको मिलने वाला है, 26 क्वेश्चंस रहेंगे। यू विल बी गेटिंग मेनी थिंग्स। और इसका सिलेबस और पूरा स्ट्रक्चर टीसीएस एनक्यूटी से मैच करता है। जो आईटी प्रोग्रामिंग वाले हैं वो लोग के लिए बहुत ईजी होगा। अगर आईटी आपने पहले दिया, ये भी एग्जाम देना चाहते हो, 21 और 20 ग्रेजुएट से हो, बहुत ईजी है, बहुत सही है, दे सकते हो। प्रिपरेशंस पहले से अप्लाई कर दो, हो जाएगा। ठीक है, मेहनत है, बस मेहनत करना है, दैट इज इट। नेक्स्ट थिंग ये आपका है, दैट इज दिस वन, प्रोग्रामिंग लॉजिक सेक्शन। प्रोग्रामिंग लॉजिक सेक्शन में आपको 10 क्वेश्चंस आने वाले, 15 मिनट्स मिलेंगे। इट इज़ मोर देन एनफ, आप डेफिनेटली कर सकते हो, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होंगे। इट विल बी, वो सिलेबस अभी हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट थिंग मतलब देखेंगे, डिसाइड तो पहले से हो चुका है। नेक्स्ट थिंग हैंड्स ऑन कोडिंग, 2 कोडिंग के क्वेश्चंस आने वाले हैं। पहला कोडिंग क्वेश्चन थोड़ा इजी होगा एज कंपेयर टू सेकंड वन। 15 मिनट्स मिलेंगे पहले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट वन 30 मिनट आपको मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू है। ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, बिकॉज शफलिंग वगैरह होती रहती है, तो डिपेंड करेगा, आपके किस्मत पे डिपेंड करता है, बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। सो दिस इज ओवरव्यू। ये आपको ये स्क्रीनशॉट, इसका आपको पूरा ओवरव्यू आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके रख सकते हो। इट विल बी ईजी। ये आप मेरी वीडियोस बार बार देख सकते हो, वो भी है, तो प्लेलिस्ट वगैरह में सारा ऐड अप कर दिया है। नेक्स्ट थिंग फिर देखते हैं कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज, वो देखते हैं। सो जैसे कि देख सकते हो, वी हैव केम टू दिस वन, दैट इज टीचर्स ऑफ कैंपस हायरिंग ऑफ ईयर 2020-2021। टॉपिक वाइज देखते हैं। फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टॉपिक इज द वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जैसे मैंने बताया 24 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन, देन एरर करेक्शन के क्वेश्चन, देन सेंटेंस कंप्लीशन, देन सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस कंप्लीशन क्या होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट क्या होता है, सेंटेंस अरेंजमेंट मतलब ABCD एक ऐसे सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको अरेंज करना रहेगा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर। BCDA करेक्ट ऑर्डर है। ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें आपको चूज आउट करना है कौन सा सही ऑप्शन है। जंबल्ड होते हैं ना सेंटेंस, उसी को आपको सही करना है। ठीक है, देन फिल इन द ब्लैंक्स में आपका ग्रामर वगैरह से होता है। ग्रामर का अच्छा आपको नॉलेज है या ठीक ठाक नॉलेज भी, बेसिक नॉलेज है, तो आप कंप्लीट कर सकते हो ग्रामर सेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। देन सेंटेंस ऑर्डरिंग वगैरह, सेंटेंस ऑर्डरिंग, पैसेज ऑर्डरिंग, आपको पैसेज दिए रहेंगे, उसको आपको ऑर्डर करना है, वो आपको कनेक्ट करना रहेगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है, विच इज द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, दैट विल बी फर्स्ट सेंटेंस, देन सेकंड उससे डिपेंडेंट, फिर उससे कौन सा कनेक्ट कर रहा है, ऐसे आपको देखना है। नेक्स्ट थिंग पैसेज ऑर्डरिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको एक पैराग्राफ आ जाएगा पूरा, लाइक पूरे एक सेंटेंस, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, 3-4 पैराग्राफ रहेंगे, वो आपको रीड आउट करना है, और आपको 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे जो उससे रिलेटेड रहेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, पैराग्राफ आप बार बार पढ़ सकते हो, लेफ्ट साइड में पैराग्राफ आ जाता है, राइट साइड में आपको क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे आपको सॉल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग वर्ड सिलेक्शन। वर्ड सिलेक्शन मतलब अगर ये एक स्टेटमेंट है तो इसके लिए वर्ड कौन सा होगा, एक वर्ड में अगर बताना है तो कौन सा वर्ड चूज कर सकते हो, वो चीज। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स वगैरह की स्पेलिंग कौन सी सही है, ये सारी चीजें। स्पेलिंग वगैरह तो कम चांसेस होते हैं, बट मैंने सारे टॉपिक्स लिस्ट आउट कर दिए हैं जो आपके लिए। एरर आइडेंटिफिकेशन, एरर का आइडेंटिफिकेशन बहुत सही है। मतलब सही क्या, इन सेंस की एरर आइडेंटिफाई करना है आपको कि हाँ किस जगह एरर है, व्हाट इज द एरर। अगर नो एरर है तो उसका भी ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट थिंग बेस्ट एक्सप्रेसेस सिनोनिम्स, मतलब एक पूरा वर्ड स्टेटमेंट रहेगा, अगर उसको आपको वर्ड में करेक्ट करना है तो कौन सा सिनोनिम बेस्ट होगा, दैट इज इट। देन दिस वन दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग का थोड़ा सा अलग हो जाता है। रीजनिंग में देखो, रीजनिंग का जब भी कर रहे हो ना, आई विल सजेस्ट कि पहले तो 30 मिनट, तो 30 क्वेश्चन 50 मिनट्स मिलने वाले, इसमें ज़्यादा मिनट इसलिए मिल रहा है बिकॉज रीजनिंग है यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। नेक्स्ट थिंग आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है, दैट इज वेन एवर यू आर गोइंग, जब बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन आएंगे, नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे, तो कोडिंग डिकोडिंग के लिए ABCD लिख लेना, इट विल बी इजी। ऐसे ही दिमाग मत मारने लगना बिकॉज टाइम वेस्ट होता है। तो ABCD लिखे रहोगे, सामने दिख जाएगा व्हाट इज द पैटर्न। ठीक है, नंबर सीरीज से क्वेश्चन आ सकते हैं। ब्लड रिलेशन क्वेश्चन 100% आएंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन कोडिंग डिकोडिंग 100% डिकोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। एक तो फिक्स है, एक आएगा ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग एजेस,
देन डेटा सफिशिएंसी, देन मीनिंगफुल वर्ड क्रिएशंस, देन सीटिंग अरेंजमेंट। ईजी है बट सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ईजी एक हार्ड, डिपेंडिंग ऑन द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर, ठीक है, डिपेंड करेगा, वो चेंज होता रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी किस टाइप की भी किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। नेक्स्ट थिंग सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। देन ऑड मैन आउट, देन डिस्टेंस एंड डायरेक्शंस। डिस्टेंस डायरेक्शन क्या होता है कि अगर मैं इफ अनुराग इज मूविंग नॉर्थ टू 10 मीटर्स, देन साउथ टू 20 मीटर्स, देन ईस्ट टू 30 मीटर्स, तो आप टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ, कहाँ पे अभी है, वो सारी चीज़ें आपको रीड आउट करनी है, वो सारी चीज़ें आपको फिगर आउट करनी है। तो वो सारा सेंटेंस कंक्लूजन, आपको कई सेंटेंस दिए जाएंगे, यू विल बी गिवन मेनी सेंटेंस, तो कंक्लूजन आपको निकालना, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज द ऑप्शन दैट इज करेक्ट, ठीक है। देन सिलॉक्स एनालॉजी और सिलॉक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। सिलॉक्स सिंपल नोटेशन क्वेश्चन ऑप्शनल है, हो सकता है आ सकते हैं, हो सकता है नहीं आ सकते हैं, इट विल डिपेंड। देन न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिमिलरली 26 आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, 40 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं। ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो वेबसाइट पे जाके स्क्रीनशॉट ले लो, पहले वीडियो देख लो, ठीक है। then speed, time, distance, then permutation, combination, then boats and streams, then equation, linear and quadratic से रिलेटेड इक्वेशंस वगैरह आने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट CISI के ऊपर। देन प्रॉफिट लॉस 100% आएगा ही है, प्रॉफिट लॉस तो 100% क्वेश्चन होता है। स्पीड, डिस्टेंस, PNC, बोर्ड स्ट्रीम्स, ये सारे एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। देन मिक्सचर्स एलिगेशंस ऑप्शनल होता है, हो सकता नहीं आ सकता, इट विल डिपेंड। टाइम वर्क आएगा ही आएगा। देन डिविजिबिलिटी ऑप्शनल। देन LCM HCF आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे LCM HCF क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी नहीं पूछे जाएंगे, इट विल डिपेंड कि किस टाइप की डिफिकल्टी वो लोग बना रहे हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट थिंग प्राइम प्रोडक्ट्स, देन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिपेंडिंग 90% है, आएंगे नहीं भी आ सकते हैं, तो प्रिपरेशन सारी करनी पड़ेंगी आपको। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं, हो सकता है आ सकता है, हो सकता है नहीं आ सकता है, 50-50 पर चांसेस है। ज्योमेट्री के क्वेश्चंस उतना ज़्यादा आता नहीं है TSS में, डिपेंडिंग ऑन मेनी थिंग्स। डेटा इंटरप्रिटेशन 100% आएगा, डेटा इंटरप्रेट करने का। देन प्रोग्रामिंग लॉजिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन आने वाले, 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, 15 मिनट आपका मिलेगा। देन आपको क्या क्या करना है, बेसिक C लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, बेसिक आपका क्लियर है, अगर पॉइंटर्स वगैरह, स्ट्रक्चर्स, एरे, ये सारा क्लियर है, डेफिनेटली आप कर सकते हो। ड्राई रन के क्वेश्चंस भी होते हैं, दैट इज आउटपुट वगैरह निकालने के, तो वो भी आ सकते हैं। फंक्शन डेटा टाइप हो गया इसमें। देन इनबिल्ड लाइब्रेरीज पूछ सकता है, ये कौन सी लाइब्रेरीज है। कमांड लाइन प्रोग्रामिंग, उसके बाद फिर फंक्शंस एंड डेटा टाइप्स, किसके कितना रेंज है, अगर ये इतने बिट का है तो कितने बिट का होगा, लाइक कितने बाइट्स क्या साइज होगा इस पर्टिकुलर इंटीजर का, इस टाइप के क्वेश्चंस। देन इनबिल्ड लाइब्रेरीज, देन कमांड लाइन प्रोग्रामिंग, उसके बाद फिर हो गया ये वाला, दैट इज ऊप से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे यार। ऊप्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम के लिए आप जाओ ऊप्स, तो लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर रोल के लिए जा रहे हो, टेक्निकल IT रोल के लिए जा रहे हो, तो ऊप्स तो 100% है यार, लिख के देता हूँ, आएंगे ही आएंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्लास ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब ऐसे पूछ लेगा, दैट एक स्टेटमेंट पूरा दे देगा। देन इट विल आस्क विच ऑफ द, मतलब कौन सा ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है, कौन से ऊप का कॉन्सेप्ट इससे रिलेट कर रहा है, दैट इज, ठीक है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर ये पढ़ लेना। देन प्योर एंड वर्चुअल क्लास एंड वर्चुअल क्लास के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें, बिकॉज ये सारे क्वेश्चन पूछे हैं, आपको लिखना नहीं रहेगा, आपको एक ऑप्शन चूज आउट करना रहेगा। डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड, दैट इज स्टैक क्यू। देन ट्रीज एंड लिंक लिस्ट आते हैं यार, MCQs आते हैं, मैं कहूँगा MCQs आएंगे, बट कोडिंग में मुश्किल है, कोडिंग में इन सारे क्वेश्चंस लाना, दैट इज बाइनरी ट्री और क्यू, लिंक लिस्ट, इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल होता है। नेक्स्ट थिंग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, देन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, AVL ट्रीज वगैरह हो गए, बाइनरी ट्रीज हो गए, दैट इज B ट्रीज। देन ग्रीडी एंड DP मुश्किल है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग मुश्किल है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो सकता नहीं है। देन नैपसैक आ सकता है, ग्रीडी आ सकता है, इट विल डिपेंड, ठीक है, डिपेंड करेगा, आपके किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है। देन कोडिंग के ऊपर देखो, वो 2 कोडिंग के क्वेश्चंस रहेंगे, फर्स्ट विल बी ऑफ 15 मिनट्स, नेक्स्ट विल बी ऑफ 30 मिनट्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया। देन एरेज के ऊपर, स्ट्रिंग के ऊपर, मैट्रिसेस के ऊपर, नंबर सीरीज के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ DP, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ DP, देन मैथमेटिक्स एंड ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। मेन आपके क्या है, मेन टॉपिक्स जिस पे आपको ध्यान रखना है, ऊपर के 4, दैट इज दीज, ये सारे जो है ना, ये सारे इन पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। ये सारे में ये भी आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कॉन्सेप्ट ऑफ DP, इस पे थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आएंगे।
बट 30 मिनट्स वाले में सेकंड क्वेश्चन है उसमें आ सकता है, बिकॉज उसमें थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। ये सारी चीजें थी, ये सारा पूरा प्रोसेस था, ये सारा मैंने बता दिया। सारी चीजों के बारे में हमने बात कर ली है। और आपको वीडियो को लाइक तो कर ही दी होगी, ग्रेजुएशन जरूर कमेंट कर देना। और अगर आपको अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन का इशू आ रहा है तो वो इशू मैंने सॉल्व कर दिया है, वो सारी चीजें मैंने बता दी है पहले ही, तो वो सारी चीजों का आप ध्यान रखना। और सारी चीजों का पूरा प्लेलिस्ट में मैंने मेंशन कर दिया है। इन द डिस्क्रिप्शन यू विल गेट द प्लेलिस्ट, ऑन द चैनल यू विल गेट द प्लेलिस्ट इन द प्लेलिस्ट सेक्शन। तो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आने वाली, काफ़ी वीडियोस आगे भी आने वाली है। टीसीएस एनक्यूटी अगर आईटी प्रोग्रामिंग कोई प्रिपरेशन कर रहा है या कर चुका है, अगर क्लियर कर ली हो तो ये भी एग्जाम दे सकते हो। सिमिलर एकदम डिट्टो सेम है, सेम सिलेबस है, वो सारा सिलेबस आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो। इट इज़ वेरीफाइड बाय मी। और ये सारी चीज़ें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। ऐसी वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहते हैं, जो भी आपका कॉमेंट्स, जो भी चीज़ें हैं वो मैं जरूर पढ़ता हूँ, वही सारी वीडियोज़ आती रहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।